There you see Delhi police keeping an eye on the proceedings using this drone, which is there on your screens. Nothing is being left to chance. Police so far haven't resorted to extreme use of force, but the students have now been pushed back from the Karol Bagh metro station where they were stationed, and they were raising protests against the MCD, Municipal Corporation of Delhi, which is responsible for the upkeep, the drainage system, the electricity, and rest of the things, the basic management of this whole place, as in rest of the parts of the Delhi. A lot of Delhi police personnel present here, which are asking the students to step back, go back, and not create any sort of scene here. But what we see here is clear from the fact and the presence of the students that they are not going to back down very soon. Almost 200 to 300 police personnel, anti-riot gear, rapid action force, and paramilitary has been roped in to maintain law and order here. At the corner of the Karol Bagh metro station, we saw the anti-riot gears and the anti-riot vehicles, Vikrant, being posted. This is a classic case of what has transpired earlier in Delhi as well in the days of Mandal Commission, when the students were up against the government. This time around, with the death of 3 students in one of the private coaching centers in Old Rajendra Nagar of Delhi. The students are out on the streets. Needless to say, their anger is also spilling over. But the question here is, who is accountable? Will this be another case of passing the buck, or will the government really stand up? The Chief Minister, as of now, as we speak, of Delhi is in jail, Arvind Kejriwal, and whether it is going to be a tossing situation between the state government and the centre remains to be seen. Delhi Police, which falls under Ministry of Home Affairs, comes directly under the jurisdiction of the central government. They have been entitled to maintain law and order here. Placard saying, we want what you can't give, justice. Fine, give us the least, give us numbers, give us closure. Poignant scenes here from Old Rajendra Nagar, the students not mincing their words and demanding justice for the death of the 3 students who had come here to prepare for the civil services examination. Media gamut also here, lots of people here willing to speak to the camera also. You will see journalists also flanking all around, talking to the people. Let's speak to a few people who are present here. What do they think about it? Would you like to speak? Yes. क्या लग रहा है ये जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इससे क्या डिमांड्स है, क्या मांगा जा रहा है? मोस्टली जो डिमांड्स है वो कोचिंग सेंटर्स के जो बेसमेंट में क्लासेस चल रही हैं, जो कल मतलब जो 3 बच्चे यहाँ जिनका मर्डर किया गया है कोचिंग सेंटर्स के द्वारा, जो मतलब इलीगली बेसमेंट में क्लासेस चल रही थी, लाइब्रेरीज चल रही हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होने की डिमांड है। और यहाँ जो आगे जितनी भी इलीगल जितनी भी ये कर रखे हैं बेसमेंट में, जो क्लासेस चल रही हैं या पीजी चल रहे हैं, हॉस्टल चल रहे हैं, जो बेसमेंट में इलीगली जो मतलब एक तरह से वहाँ स्टोर रूम की तरह है, तो उन्हें खत्म, उनकी क्या तो सिक्योरिटीज मतलब दोबारा से रीचेक करी जाए, या फिर उन्हें खत्म करके मतलब कुछ और उनकी जगह कुछ भी प्रबंध करा जाए। और जो इलेक्ट्रिक का यहाँ है, जो यहाँ बिल्डिंग्स में क्या होता है कि सारे मीटर्स स्टेयर्स पे लगे हुए होते हैं। अच्छा, तो जो बच्चे के निकलने का ब्लॉक है, अगर वो स्टेयर्स पे मीटर में आग लगती है या शॉर्ट सर्किट होता है, तो जो ब्लॉक है वो ब्लॉक हो जाता है रास्ता। तो उसके आगे भी आने वाले मतलब टाइम में ऐसे हादसे होते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमने देखा है दिल्ली में, एक क्लासिक केस है, और दिल्ली में बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि देश की राजधानी है और साथ ही साथ 200 लाइब्रेरी चल रही है जो ऐसी बेसमेंट में, जिसमें 100 या 50 कैपेसिटी रहती है। बिल्कुल, 200 बच्चे हमेशा रहते हैं, जहाँ बुक्स रहती हैं, अगर इलेक्ट्रिक वहाँ कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है या फिर पानी भरता है तो बहुत बड़े हादसे यहाँ होते रहेंगे। बिल्कुल, अफसोस की बात यह है कि जब कोई हादसा हो जाता है उसी के बाद लोगों का ध्यान इस पर जाता है। उससे पहले आज यहाँ सारी जो अतिक्रमण है रोड पे, यहाँ जो बुक्स की दुकानें हैं सारी वो हैं, वो आज सब अंदर है, आज सबने अंदर कर रखी है, पर आज से पहले सारी रोड पे थी और सारा इलीगल चल रहा था, बट आज सब एमसीडी काम पे है, सब पुलिस काम पे है। बिल्कुल, this is the place in Delhi where if you ask me the real estate rates, trust me, even places in London won't be so costly as per square foot of this area is concerned. This is the same place where the film based on student struggle, 12th Fail, was published. A lot of positive headlines came out of it, but now this is the underbelly. This is how the cookie crumbles here in Old Rajendra Nagar, जहाँ पर फ्यूचर IAS बनाए जाते हैं जो देश के लिए नीति निर्धारण करते हैं, लेकिन जहाँ से वो तैयार होकर आते हैं वो खुद शैम्बल्स में है। That place in itself. बहुत ही इमोटिव मैसेज आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, हमसे जरा बताइए किस तरह का क्लोजर आप डिमांड कर रहे हैं? मैं बस ये कहना चाहता हूँ सर कि कोई आम छात्र की मौत की या जीवन की कोई मूल्य है इन इंस्टीट्यूशन की नजरों में या नहीं है। मतलब लाखों रुपए लेते हैं और परिजन जब आते हैं उनको बड़े बड़े सपने दिखाते हो, आपका बेटा कलेक्टर बनेगा, IPS बनेगा। अरे कलेक्टर IPS मत बनाइए सर, उसको जिंदा घर बेच दीजिए। हम कह रहे 4-5 साल फेल होकर जाएगा, मतलब जिंदा तो रहेगा। उसकी आज आपने मतलब लाश बेच रहे हो घर में, क्या बीतेगी उन परिजनों पे?
अभी पुलिस वाले मजाक कर रहे हैं, हमें लेके कह रहे पसीना पसीना हो गए। हम सर आपका कोई आता तब समझते पसीना पसीना हो गए। सांसें तो चल रही है मेरी की नहीं चल रही है। मतलब ये छात्र यहाँ खड़ा है, कोई मतलब अपने लिए चला है, कोई राजनीति नहीं हो रही है। सब अपने अपने मन से आए हैं। कल को हम भी हो सकते हैं, हमारे साथ कोई भाई बहन हो सकता है, हमारा कोई मित्र हो सकता है। शर्म नहीं है इन पुलिस वालों को, इन इंस्टीट्यूशन को, मतलब हरा रहे हैं यहाँ से बाहर है, शर्म नहीं है इनको बिल्कुल। दिल्ली प्रशासन हम पे लाठी चला रही है, हम पे लाठी चलाए क्या मिलेगा सर आपको? इन इंस्टीट्यूशन के जो माफिया बैठे इन पे लाठी चलाइए सर, इन पे लाठी चलाइए, हम पे चलाइए। हम आम छात्र हैं, हम ही इस देश के भविष्य हैं। आप पूरा लाठी चलाओ, क्या साबित करना चाह रहे हैं? आपने बड़े टीचर को देखा सोशल मीडिया पे जो सो कॉल्ड टीचर्स कहते हैं, अपने आप को ज्ञान देते हैं, ये दृष्टि आईएएस जो है, इनके विकास दिव्य कीर्ति लोग जो आकर अलग अलग जगह पर बात करते हैं, वो पहले रहे हैं, वो बहुत सारी बातें बता रहे थे। 2 लाख रुपए लेकिन यहाँ पर फ्री में पढ़ाते हैं, जरा पूछिएगा उनसे। बात फ्री में पढ़ाने की अलग चीज है, लेकिन एक जो बेसिक पानी भर गया तो लोगों का यहाँ पर ध्यान आकर्षित हुआ। लेकिन जब इतने साल से लोग रह रहे हैं तब कभी सवाल नहीं उठाया उन्होंने? ये बिजली की तार जरा दिखाइए, ये बिजली की तार जिस तरह से बिजली के तार की वजह से कल परसों पटेल नगर में एक छात्र की स्टूडेंट की मृत्यु हुई है, पटेल नगर में इन तारों की वजह से। और इनको शर्म नहीं आ रही है, मृत्यु ऐसे नहीं हुई है, प्री प्लान्ड है। एमसीडी से पास कैसे हो गया नक्शा? ये 2 मतलब बेसमेंट अंदर एक नहीं था, एक माला नहीं था, 2 माले थे, 2 माले बने हैं बेसमेंट में, पास कैसे हो गया एमसीडी? ये पूछना प्री प्लान है, मृत्यु नहीं है, कोई इंसिडेंट नहीं है, प्री प्लान्ड है। आप मौत खेल के, छात्रों की मौत के साथ खेल के आप रुपया कमा रहे हो, शर्म नहीं है? शर्म नहीं है? देखिए सवाल यहाँ पर ये उठता है कि चलिए आज ये घटना हुई है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, लेकिन क्या आपको लगता है ये आज 1-2 दिन ही रहेगा, या इसके लिए आगे हम लोग डिमांड करेंगे कि हाँ भाई यार ये बिजली पानी मोस्टली जो देखा गया, जैसे मुखर्जी नगर में देखा गया था आग लगने के बाद, वहाँ भी कोचिंग सेंटर ऐसी रनिंग हो रहे हैं, लाइफ मूव्स ऑन, वहाँ ऐसी चल रहा है, यहाँ भी ऐसी चलता रहेगा। क्योंकि पहले भी यहाँ जो भी जितनी भी इंसिडेंट्स हुए हैं उसके बाद भी मतलब कि मीटर बाहर लगेंगे, बट कुछ नहीं होता है, मीटर अभी भी अंदर लगे होते हैं। बेसमेंट में क्लासेस अभी भी चलती रहती है, 2.5 लाख रुपए फीस देते हैं बच्चे, फिर भी बेसमेंट में बैठ के क्लासेस कर रहे हैं। वहाँ सफोकेशन से, अगर ऐसी है कि दिन में लाइट भाग जाए तो वहाँ अंधेरे से सफोकेशन से इंसान मर जाए। बिल्कुल। देखिए मुझे लगता है स्टूडेंट्स के स्ट्रगल को किस तरह से भुनाया जाता है, पैरासाइट्स की तरह, अगर उनको जैसा आप लोग बता रहे हैं कि उसमें से पैसे निकाले जा रहे हैं, तो हमें और आपको तो लगता है कि हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली उनके जो अधिकार होते हैं, बेसिक अधिकार, उनको रॉब किया जा रहा होता है, और उसके नाम पर दिस प्लेस इज थ्राइविंग एज ऑफ नाउ। इट रिमाइंड्स अस ऑफ द मूवी रंग दे बसंती, द वे आवर फ्रेंड हियर वाज सेइंग कि ऐसे ही चलता रहेगा, सिस्टम को बदलेगा कौन? A very burning question. Time and again, India has witnessed such things. The question here is whether the authorities will take note and change the scenario for good. Don't miss out. Follow One India for real-time updates.